তো হ্যালো দোস্ত, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। তো এখন যেমনটা দেখছি যে অনলাইনে একটা পার্টি তৈরি হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, ককরোচ জনতা পার্টি, যার ফলোয়ার্স এখন 22.4 মিলিয়ন। তো ওনারা চেষ্টা করছে দেশটাকে ভালো পথে নিয়ে আসার। সাম্যতে দিয়ে এতজনা ফলো করেছে, আরও অনেকজনা চাইছে যে ভালো করুক। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি একটা পোস্টে দেখছিলাম যে বিজেপি আর ককরোচ জনতা পার্টির মধ্যে সাপোর্টার বেশি কে কে। তো স্টল করে করে দেখছিলাম, তখন দেখি বেশিরভাগই সব ককরোচ জনতা পার্টির সাপোর্টের। তো এই আপনারাও দেখুন, তবে যতটা আমি দেখেছি বেশিরভাগ সব সিজেপি মানে ককরোচ জনতা পার্টির সাপোর্ট। এর ভেতরে বিজেপি কিছু কিছু আছে, কিন্তু সব থেকে বেশি সিজেপি ককরোচ জনতা পার্টি। তো আপনারা কি সবাই সমর্থন? কমেন্টে জানান। তবে এখন যা হালাত নরেন্দ্র মোদী মানে আমাদের মোদী দাদুর দেখে কেউ সুখে নেই। যেখানে যেখানে মোদী দাদু আছে, মোদী দাদুর লোক আছে, সেখানকার সব লোকের অবজেকশন আছে, কেউ সুখী নেই। কি করবে মোদী দাদু? সবার মন রাখতে পারে না তো, তাই না? তো দেখছো তো তোমার নেতৃত্বে মানুষ কতটা সুখী। দেখো দেখো। সংসার নাই, আমার স্বামী নাই, আমার কেউ নাই দুনিয়াতে। আমরা কই যাব? আমরা যাবোটা কোথায়? আশা করে তো দিছি যে সরকার বলছে গরিবদেরকে দেখবে, গরিবদেরকে তো রাস্তায় দাঁড় করায় দিচ্ছে। এখন আমরা কই যাব? যাব কোথায়? আমরা কি করব? আমাদের চাকরি নাই, পড়াশোনা জানি না, কারো বাড়িতে কাজও করতে পারবো না। আমরা এখন কি করে খাবো? খাওয়া তো দূরের কথা, বাঁচতে তো আমার একটা ছাদ লাগবে, ওই ছাদ তো নাই। কি করবো আমরা? কই যাব? এত পাবলিক কই যাবে? নতুন সরকার আইছে কি 2 দিন না হইতে এই উচ্ছেদের আলাপ আলোচনা হইল ঘটনা এইরকম তো শুনি নাই। তাইলে ভোট আবার হোক, আমরা 3,000 টাকা আমাদের দরকার নাই, 1,500 টাকাই ভালো ছিল। এখন আমরা কোথায় যাব? আমরা না হইলো এই জায়গায় বসবাস করতেছে 80-90 বছর হয়ে গেছে গা। দেখা যাচ্ছে চোখে জলও চলে যাচ্ছে। দেখছো তো বাংলায় আমাদের মোদী দাদু আসার পর থেকে সব মানুষ কাঁদছে। মানুষগুলো কোথায় যাবে? আবার বলছে আবার ভোট হোক। আবার ভোট হোক। আপনারা কি বলেন? সত্যিকারের মানুষের অনেক কষ্ট। ভেবেছিল 3,000 টাকা করে অন্নপূর্ণা ভান্ডার, এখন ফর্ম দেখে দাঁতে লেগে যাচ্ছে। দেখো, থেকে আবেদন করা যাবে অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য। এটা কি ঠিক করলো? এত আশা দিল। প্রত্যেকে 1,500 টাকাই ভালো ছিল। আমার মনে হয় একটা ফর্ম থাকলে ভালো হয়, একটাতে দুটো থাক না। অত শিক্ষিতও না যে আমরা অত ফর্ম ফিল আপ করতেও পারবো। ও অত ডকুমেন্ট আমার বাবারও নেই, আমারও। কে ফর্ম ফিল আপ করবে? আমরা পেরে উঠছি না, ওই জন্য আমরা ছেড়ে দিচ্ছি যে আমরা। এবার বলে পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, সরি সিজেপি সরকার। আপনারা ভুল শোনাচ্ছেন, সিজেপি সরকার। ওয়েলকাম টু রিয়ালিটি। हेलो मेरे साथी कॉकरोचों। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ अ टाइग्रेस, वन हु ड्रिंक्स इट गेट्स द पावर टू रोर। यानी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम देश के स्टूडेंट्स को दहाड़ना सिखाने की जगह बिल बिलाने पे मजबूर कर रहा है कि बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? 24 में वो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो कि दोबारा लीक हो गया पेपर। एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा, ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? सिर्फ पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक्स ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ स्टूडेंट्स की लाइफ और मेंटल हेल्थ पे भारी नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। ये मेरा पड़ा था बेगूसराय, ये पड़ा था मेरा बक्सर में। ठीक है सर, 2 दिन स्टे किए थे, 4,000 रुपए लगा था। और आप बिलीव करेंगे सर, दोनों का दोनों पेपर कैंसिल हो गया। क्या करें हम लोग सर? जहां पेपर लीक नहीं होता वहां सिस्टम कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे यूपी में एसएससी जीडी के एग्जाम सेंटर्स में सीटिंग कैपेसिटी से डबल नंबर ऑफ एडमिट कार्ड्स इशू कर दिए गए। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। फिर जहां लीक और एग्जाम सेंटर की प्रॉब्लम न हो, उस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर ऐसा बना दिया जाता है कि आंसर नॉलेज के मेरिट पे नहीं बल्कि तुक्के मार के देना पड़ता है।
यूपीएससी के लिए एक मैं बेटर चीज बता देता हूँ कि एग्जाम देना बंद करो, ये सिक्का लिया करो, बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बुलाओ, जिसका हेड आया उसका पास, जिसका टेल आया उसकी पूंछ काट के घर भेज दो, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ लक बेस्ड है यार। तुम नॉलेज चेक थोड़ी ना कर रहे हो, अब तो तुम टाइम पास करने लग गए हो। तो ये पेपर लीक तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद इससे भी होगी, बस तरीका अलग है। स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद करने के इनोवेटिव तरीकों में अब हमारा सिस्टम टेक्नोलॉजी का भी बढ़िया इस्तेमाल कर रहा है। सीबीएसई के छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनकी जो कॉपियां स्कैन की गई हैं ठीक से नहीं हुई। स्कैन में मिली कॉपियां इतनी धुंधली हैं कि छात्र अपनी ही लिखावट नहीं पहचान पा रहे। इसकी मार्किंग कैसे मुमकिन? सीबीएसई से मेरे को भी ये कॉपी मिली है, मेरे यहाँ तो मेरी हैंड राइटिंग है और ऊपर मार्क्स भी 33 मिले हैं मेरे को बस, जबकि मैंने पूरा पेपर करा था। और अभी जब मैं पेपर चेक करने लगा तो देखा कि इसमें तो मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं। और जब इन परेशान स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया था, तो स्टूडेंट्स नेचुरली सोशल मीडिया पे आए और कंप्लेन करने लगे, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। मतलब सीबीएसई की कॉपी चेकिंग पर सवाल उठ जाए, नीट यूजी का पेपर लीक हो जाए, छात्रों का करियर बर्बाद हो जाए, वे तनाव में रहें, अधिकारी शिक्षा मंत्री का कुछ ना बिगड़े, लेकिन जो इन पर सवाल उठाएगा उसे पाकिस्तानी बता दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं खुद को पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ऑपोजिशन फंडेड कॉकरोच डिक्लेयर करते हुए पीएम मोदी को एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि सर, अगर आपने एजुकेशन के किसी भी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टूडेंट्स के टूटे हौसलों पर थोड़ा मलहम लगाने का मास्टर स्ट्रोक करते हैं, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ना सिर्फ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का नाम, बल्कि इस वीडियो पे कोलैबोरेट करने वाले हर क्रिएटर के हैंडल का नाम चेंज करवा के नरेंद्र मोदी फैन क्लब रखवा दूंगा। अच्छा, बोले ऐसा होता है। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने कल देखा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी वेदांत के ऊपर। वेदांत एक 17-18 ईयर ओल्ड का एक स्टूडेंट है जिसने सीबीएसई की एग्ज़ाम दी थी और उसकी गलत मार्कशीट चेक हुई थी, जिसके चलते उसको गलत मार्क्स आए थे। तो उसके ऊपर कई सारे लोग वेदांत को पाकिस्तानी कह रहे थे और कह रहे थे ये तो इंडिया का स्टूडेंट है ही नहीं, ये इंडियन है ही नहीं। तो वेदांत के सपोर्ट में मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि वेदांत के साथ जस्टिस होना चाहिए और वेदांत को पाकिस्तानी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही कंट्री का स्टूडेंट है। और मैंने उसमें दूसरी बात यही कही थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कल रात हमारा जो वीडियो था, जो अब तक 1.7 करोड़ लोगों ने देखा था, उसको इंस्टाग्राम से हटाया गया गवर्नमेंट के कहने पर। क्यों हटाया गया? इसलिए क्योंकि मैंने वेदांत को सपोर्ट किया था। मैंने बोला था कि वेदांत को सही मार्क्स मिलने चाहिए और ऐसा फ्रॉड एग्जाम्स में नहीं होना चाहिए। या इसलिए हटाया गया क्योंकि मैंने कहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए उनके फेलियर के लिए। मतलब हटाना तो एजुकेशन मिनिस्टर को जाना चाहिए ना, हमारी वीडियो को क्यों हटाया? और ये ऐसे कैसे चल सकता है? आप कभी सोच सकते हो कि एक प्राइवेट कंपनी में कोई बड़े लेवल पर एक मैनेजर हो और वो गलतियों पर गलती किए जा रहा है। मतलब नीट का पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई में गलत मार्क्स आ रहे हैं, एसएससी में अभी फिर से कुछ नया आ रहा है जिसमें और कुछ फ्रॉड हुआ है। मतलब गलतियों पर गलती हुई जा रही है, लेकिन अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं। क्या आप कभी सोच सकते हो किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसा हो सकता है जहां पर कोई बार बार गलतियां करे और उसको फायर ना किया जाए? कंपनीज में तो नॉर्मली कोई एम्प्लॉय एक बार गलती कर दे, 2 बार गलती कर दे तो उसको तुरंत हटा दिया जाता है ना। तो सेम जो सरकार आपके पैसों से चल रही है, आपके वोट से चल रही है, तो वो क्या एक मंत्री को नहीं हटा सकती जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है? ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए क्या? ऐसा ही तो होना चाहिए ना कि अगर कोई जब गलती करे तो उसको हटा दिया जाए। तो मैं भी तो वही मांग कर रहा था। आई वॉज डिमांडिंग द सेम। सो व्हाई वॉज द वीडियो टेकन डाउन फ्रॉम इंस्टाग्राम? तो मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं इस कमेंट में फिर से वो पिटिशन का लिंक भेज रहा हूं जहां पर आप सभी लोगों को साइन करना है और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी है। देखते हैं ये कब तक रिजाइन नहीं करते हैं, कब तक आप लोगों को इग्नोर करते हैं। अभी तक उस पिटीशन पर 7.5 लाख लोगों के साइन अप्स आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर साइन करें और ज्यादा से ज्यादा लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन के बारे में बोले, क्योंकि उनको कोई हक नहीं है अभी भी एजुकेशन मिनिस्टर बने रहने का। और एंड में मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो भी आप लोग तुरंत डाउनलोड करें और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करें और शेयर करें, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद ये वीडियो भी ये लोग डिलीट कर देंगे, हमारे इंस्टाग्राम से हटा देंगे। सो बिफोर दैट, डाउनलोड दिस वीडियो, पोस्ट ऑन योर सोशल मीडिया एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल एंड डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। थैंक यू।